सतनाम करता निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। ज्ञान ध्यान किश कर्म न जाना, सार न जाना तेरी। सब ते वड्डा सतगुर नानक, जिन कल राखी मेरी। सब ते वड्डा सतगुर नानक, जिन कल राखी मेरी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिबा जी। मारू महला पंजवा। फूटो आंडा भरम का, मन है भयो परगास। काटी बेरी पगहते, गुर कीनी बंद खलास। आवन जान रहे और तपत कड़ाहा बुझ गया। गुर शीतल नाम दियो राव। जपते साधु संग भया, तो छोड़ गए निगहार। जिसकी अटक तिस ते छुटी, तो कहाँ करे कोटवार। चूका भारा कर्म का, होए ने कर्मा। सागर ते कंडे चढ़े, गुर कीने धर्मा। सच थान सच बैठका, सच सुआओ बनाया। सच पूंजी सच वखरो, नानक घर पाया। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी अंदर जुड़ बैठी गुरु रूप प्यारी साध संगत जीओ। शब्द दी उचार शुरू करन तो पहला गुरु पातशाह द्वारा बख्शी हुई फतेह प्रवान करना जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। यह जो शब्द आपां सारिਆਂ ने मिलके श्रवण किया है, यह धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज के 1002 अंक ते मारू राग विच सुभायमान है। पंचम पातशाह का यह शब्द है। श्री गुरु अर्जन साहब महाराज इस शब्द विच भरम की गल कर रहे हैं कि एक भरम जिहा पिया होया है ते उस नूं किवें दूर किया जा सकता है। भरम की है? भरम यह है कि दुनिया दे विच रहिंदा होया मनुख यह सोचता है कि जिहड़ी चीज़ नूं मैं देखा वो मैनूं प्राप्त हो जाए, वो मैनूं मिल जाए। पर अक्सर ही इस तो उल्ट हुंदा है ते वो चीज़ उसनूं नहीं प्राप्त होंदी। यही एक भरम है। सो भगत रविदास जी प्रमाण करते हैं, माधवे क्या कही है भ्रम ऐसा, जैसा मानिया होए ना तैसा। यही एक भरम है कि जिहड़ी चीज़ असी सोच रहे हैं दुनिया दे विच रहिंदे होए वो सानूं प्राप्त नहीं हो रही। सो अगे भगत रविदास जी बड़ी सुंदर उदाहरण दे के होर स्पष्ट कर रहे हैं कि नरपत राज सिंहासन सोया, सुपने भया भिखारी।
कि जिवें एक राजा सुता ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਉਸਦੀ ਅੱਖ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਿਖਾਰੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਅਸ਼ਤ ਰਾਜ ਬਿਸ਼ਰਤ ਦੁਖ ਪਾਇਆ, ਸੋ ਗਤ ਭਈ ਹਮਾਰੀ। ਦੇਖੋ ਕਿਹੋ ਜੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਿਖਾਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਸਾਰੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਤਰਸਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇਹੀ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਦੇਵ, ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਇਹ ਸਿਮਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਹੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਦੇਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਇਸ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਰੂਹ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਨੇਫਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰੂਹ ਕੁਰਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੜਫ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਰਾਜੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭਰਮ ਜਿਹਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੱਸੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੱਪ ਸਮਝ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਨੁੱਖ ਪਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਉਹ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਅਖਾੜਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਖਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਵਾਨ ਇਸ ਅਖਾੜੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਅਖਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਲੰਮੇ ਤੁਰੇ ਵਾਲੀ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਅਖਾੜਾ ਹੈ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਇਸ ਅਖਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਅਖਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਬੈਠਾ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭ ਹੋਈ ਛਿੰਝ ਇਕੱਠੀਆਂ, ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਵੇਖਿਆ ਆਪ ਜੀਓ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਤ ਵਜਨ ਟਮਕ ਭੇਰੀਆਂ, ਮਨ ਲੱਥੇ ਲੈਂਦੇ ਫੇਰੀਆਂ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਅਖਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਜੇ ਨਗਾਰੇ ਵੱਜ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਮਲ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਅਖਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਅਖਾੜੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਕਿਤੇ ਵਾਜੇ ਨਗਾਰੇ ਵੱਜ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਆਨੰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀ ਜੋ ਅੱਖਾਂ ਹਨ ਜੋ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਆਨੰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਸ ਚੱਖਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਅਖਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜੋ ਪੰਜ ਵਿਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਿਹੱਤੇ ਪੰਜ ਜਵਾਨ ਮੈਂ ਗੁਰ ਥਾਪੀ ਦਿੱਤੀ ਕੰਡ ਜੀਓ, ਇਹ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਵਿਕਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਪਿੱਠ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਭਰਮ ਸਾਰਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭੱਬਾ ਭਰਮ ਮਿਟਾਵੋ ਆਪਣਾ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਸਗਲ ਹੈ ਸੁਪਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਭਰਮ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਸੱਚ ਮੰਨੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਹੈ। ਜਗ ਸੁਪਨਾ ਬਾਜੀ ਬਣੀ, ਜਗ ਰਚਨਾ ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ, ਜਾਣ ਲਿਓ ਰੇ ਮੀਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੱਚ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਅੱਖ ਝਪਕਦਾ ਹੈ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਦਾ ਇਹ ਭਰਮ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ
तद ही दूर हो सकता है जब उसनूं गुरु का ज्ञान मिलेगा, गुरु की सोझी होगी। जदों वो संगत विच आवेगा, गुरु दे नाल जुड़ेगा। गुरु कौन है? गुरु शब्द है। गुर बिन घोर अंधार, गुरु बिन समझ ना आवे। गुरु तो बिना यह समझ नहीं आ सकती। सो गुरु कौन है? गुरु ग्रंथ साहिब। सो असी जदों इस शब्द के नाल जुड़ांगे तां ही साडा ये भरम, साडा ये भुलेखा दूर हो जाएगा। सो इस शब्द विच भी गुरु अर्जन साहब सानू यही समझा रहे हैं कि जिन्हां नूं गुरु की प्राप्ति हो जाती है, जिन्हां ते गुरु की कृपा हो जाती है, उन्हां दा भरम भुलेखे सारे दूर हो जाते हैं। महाराज प्रमाण करते हैं, फूटो आंडा भरम का मन है भयो प्रगास। कि जिवें पंछी दा आंडा, आंडे दे विचों बच्चा निकलता है तां ही वो उड़ारी लाउंदा है, बिल्कुल इसी तरह महाराज कहते हैं कि जिन्हां दे अंदर गुरु का ज्ञान प्रकाश हो जाता है, उन्हां दा भरम दा आंडा टुट जाता है ते वो उड़ारी लाउण जोगे हो जाते हैं। काटी बेरी पकह ते गुर कीनी बंद खलास। महाराज कहते हैं कि मोह की वो बेड़ी, वो विकारां की, वो लालसावां तृष्णावां की बेड़ी जिसनूं मनुख ने जकड़ के रखा होया है, पर जदों गुरु की कृपा हो जाती है, जदों गुरु का वासा हो जाता है हिरदे अंदर, ते फिर वो बेड़ी जिहड़ी आ वो कटी जाती है। आवन जान रहियो। महाराज कहते हैं कि जिहड़ा ये आउण जाण दा चक्कर बनया होया है, मनुख ने इस धरती ते आउणा जाना, जमन मरना हुक्म है, भाणे आवे जाए, जिसने जन्म लिया एक दिन मरना है। फिर उसका ये आउणा जाना ये सब खत्म हो जाता है, वो मुक्त हो जाता है। वो कदे भी ये नहीं सोचता कि मैनूं दोबारा ये जन्म मिले। वो परमात्मा विच अभेद हो जाता है, उसकी मुक्ति हो जाती है। तपत कड़ाहा बुझ गया, गुर शीतल नाम दियो। महाराज समझा रहे हैं कि ये विकारां रूपी जिहड़ा कड़ाया मनुख दा तप रहा है, जिसनूं उसने जकड़ के रखा होया है, पर जदों गुरु दा नाम, हर का नाम अमृत जल निर्मल, जदों यह निर्मल जल रूपी नाम उसके हिरदे विच जांदा है ते उसका तपदा होया कड़ाहा ठर जांदा है। ते जदों उसका कड़ाहा ठप गया फिर वो गुरु विच अभेद हो जाता है। महाराज अगे समझा रहे हैं, जब ते साधु संग भया तो छोड़ गए निगहार। पर ये किवें दूर हुंदा है? जदों साध जना की संगत हुंदी है, जदों कोई गुरसिख प्यारा मिलता है जो गुरु की गल सुनाउंदा है। गुरु साहब समझाउंदे हैं कि जदों कोई गुरु का प्यारा मिल जावे, जो गुरु की संगत विच लै जावे, ऐसे गुरां की संगत, ऐसे गुरु जनां की संगत नाल ही साडा पार उतारा हो सकता है। ते फिर जदों अजिहे गुर सिखां की संगत सानूं मिल जाती है, निगहार तो भाव जमदूत भाव वो विकार जो साडे जम बन के साडे नाल चिमड़े हुए हैं, वो फिर दूर हो जाते हैं। जो मेरे हर किस्म की कोई बात सुनावे, जो साडे गुरु की सानूं गल सुनाउंदे हैं, जिन्हां दे दर्शन करन नाल साडी दुरमत दूर हो जाती है, जिन्हां दे संगणिया दुरमत वंझै मित्र असाडे सही। अजिहे गुरसिख जदों सानूं मिलदे हन तां उन्हां दे नाल फिर साडी दुरमत दूर हो जाती है, ते फिर साडे ये विकार रूपी जो जम साडे नाल चिमड़े हुए हन, ये लालसावां, ये तृष्णावां, वो सारियां दूर हो जांदियां हन। अगे गुरु साहब समझाउंदे हन, जिसकी अटक तिस ते छुटी तो कहां करे कोटवार। महाराज कहते हैं कि उन्हां दी फिर जिहड़ी परमात्मा दे विच जो रुकावट पई हुई सी, जो लालसावां ने, जो तृष्णावां ने रुकावट पाई हुई सी, ਉਹ रुकावट जिहड़ी दूर हो जाती है। जदों असीं परमात्मा अकाल पुरख दी रजा दे विच रहांगे, दुख सुख नूं सब कर जाणांगे, दुख विच अरदास करांगे, सुख वेले शुकराना करांगे, जदों साडे अंदर निमरता आवेगी, जदों सहनशीलता साडे अंदर प्रवेश करेगी, जदों असीं अकाल पुरख दी रजा दे विच रहांगे ते साडी ते उस परमात्मा दे विचकार जो बनी हुई रुकावट, वो कूड़ दी कंध, वो पाल को टुट जाएगी। जपजी साहिब विच गुरु साहिब प्रमाण करदे हन कि वो कंध जिहड़ी तां ही दूर होवेगी जदों गुरु दी रजा दे विच असीं रहांगे। हुकम रजाई चलना नानक लिखिया नाल, तां ही साडी वो जिहड़ी कंध आ वो दूर हो सकदी है।
सो अगे गुरु साहब समझा रहे हैं कि फिर ये जिहड़े कोतवाल ने, जिहड़े कोतवाल होणगे जो रुकावट पा रहे ने, ये भी तैनूं कोई रुकावट नहीं पाउणगे। जदों तैनूं गुरु की मत तेरे अंदर ज्ञान प्रकाश हो गया, फिर कोई भी रुकावट नहीं पा सकता। चूका भारा कर्म का होए ने कर्मा। महाराज समझा रहे हैं कि जेड़ी तेरी जन्मा जन्मांतरां दी तेरे इस मन नूं मल लगी हुई सी, जन्म जन्म की इस मन को मल लगी, काला हुआ सिया। भाव पातशाह कह रहे हैं कि जेड़ा तेरा मन जन्मा जन्मांतरां तो कूड़ नाल भरिया होया सिया होया सी, जदों गुरु दा सिख गुरु दा प्यारा मिल जाता है, गुरु दे नाल जुड़दा है, ते फिर सारे तेरे ये कूड़ दी जिहड़ी तेरी पंड है वो सारी ये धोती जाती है। जपजी साहिब जी महाराज समझाते हैं कि जिवें गंदगी नूं पानी दे नाल साबण दे नाल धोता जाता है, बिल्कुल इसे तरह मैली हुई मत नूं नाम दे नाल धोता जाता है। मूत पलीती कपड़ होए, दे साबुन लईए ओ धोए, भईए मत पापा कै संग, ओ धोपै नावै कै रंग। कि भरी हुई मत जो पापां नाल, पापां दी भरी हुई मत नूं गुरु दे नाम नाल ही धोता जा सकता है। सागर ते कंढै चढ़ै गुर कीने धर्मा। पातशाह प्रमाण करते हैं कि फिर उस समुंदर तो पार लंघण दे लई उस कंढे ते आ जाता है जिसते गुरु की कृपा हो जाती है, जो गुरु के नाल जुड़ जाता है, फिर उसको कोई रुकावट नहीं आती, वो बहुत गुरु के नजदीक हो जाता है। सच थान सच बैठका, सच सुआओ बनाया। पातशाह प्रमाण करते हैं कि फिर जिस अंदर गुरु का वासा हो जाता है, वो थान जिथे वो बैठता है, उसके सारे पासे ही वो थां पवित्र हो जाती है, उसका हिरदा उसका पवित्र हो जाता है, क्योंकि उसने अपने हिरदे दे विच उस अकाल पुरख नूं वसा लिया है। महाराज कहते हैं कि सच पूंजी सच वखरो, नानक घर पाया। फिर क्यों ये सब हुंदा है? क्योंकि उसने उस अकाल पुरख का नाम रूपी धन है उसनूं अपने हिरदे दे विच वसा लिया। ते जदों उसने अपने हिरदे दे विच इस नाम रूपी धन नूं वसा लिया, ते फिर उसके सारे दुख कलेश ये सारे भरम भुलेखे दूर हो जाएंगे। उसनूं किसी भी तरह का कोई भै नहीं रहता, क्योंकि उसने उस अकाल पुरख नूं ध्याया। सचमुच जो व्यक्ति उस अकाल पुरख नूं ध्याउंदा है, क्योंकि वो निर्भव है, ते जिहड़ा उस निर्भव नूं ध्याउंदा है उसके सारे भरम भुलेखे दूर हो जाते हैं। सो महाराज ने सानू इस शब्द राही यही समझाउणा कीता है कि जिहड़े असीं भरम भुलेखिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ फिर रहे हां, जो असीं समझ रहे हां, सो इन्हां ਤੋਂ किवें पार लंघना है। गुरु के नाम नाल गुरु की संगत विच बैठ के ही इन्हां ਤੋਂ पार लंघिया जा सकता है। सो शब्द की विचार करदिआं होईआं भुलां दी खिमा बुलाओ फतेह जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।